Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today the topic of our discussion is pricing products and pricing considerations. Like what are the factors that we have to keep into consideration when we are setting the prices of our products. जब हम अपने products की prices को set कर रहे होते हैं तो वो कौन कौन से factors हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, go through करना पड़ता है. So the objectives of this lecture would be to understand the internal factors affecting a firm's pricing decisions and to understand the external factors affecting the firm's pricing decisions, plus the impact of consumer perceptions of price and value. So, coming towards our lecture, what actually a price is? Price can be in many forms like rent. What is rent? जब हम किसी बिल्डिंग को, किसी लैंड को रेंट आउट कर लेते हैं, तो लैंडलॉर्ड को हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड रेंट. व्हाट इज सैलरी? Salary is the amount of money that we pay to the people for rendering their services for a particular organization. Then fee, we pay fee for availing some services like in schools, colleges, universities, we avail the services of teachers, so we pay fee for availing that services. Then in hospitals, when we avail the services of doctors, we pay fee to the doctors. Similarly, wages we pay for our daily workers, then commissions. When two parties A and B are settling a transaction and the third party C is helping them out to fulfill, to complete their transaction, so the third party will be given a particular amount of money as commission. Then fares we pay when we use, say, local transports. Taxes we pay to the government, that's also a form of price. Then interest rate, when we purchase something on installments, so we pay a down payment, then along with installments we pay a certain amount of money as interest, so that interest is also in the form of price. Plus जब हम लोग बैंक से लोन्स लेते हैं, ठीक है, तो लोन जब हम लोग पे करते हैं उसके साथ हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट इंटरेस्ट भी हम लोग पे करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्राइस. So what is price? The amount of money charged for a product or service. ठीक है, जैसे हमने previous discuss किया, कोई भी amount of money, कोई product हम लोग लेते हैं या फिर कोई services हम लोग लेते हैं, उसके against जो हम लोग payment करते हैं, उसको हम लोग price कहते हैं. Or the sum of values that consumers exchange for the benefits of having or using the product or service. Obviously, when the consumers avail some product or service, so उसके अगेंस्ट हम लोग जो प्राइस पे करते हैं, उसके बेनिफिट्स जो हम लोग अचीव करते हैं, जो वैल्यूज हम लोग उस प्रोडक्ट की अचीव करते हैं, उसके अगेंस्ट एक्सचेंज में हम लोग जो अमाउंट पे करते हैं उसको प्राइस कहते हैं. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, fixed price policy and dynamic price policy. What is fixed price policy? Setting one price for all the buyers, means price is fixed for all type of buyers. Then dynamic pricing policy, charging different prices, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल्स, कस्टमर्स एंड सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल आप लोग होटल इंडस्ट्री के एग्जांपल ले लें, डिफरेंट टाइप्स के रूम हैं, उनकी डिफरेंट प्राइसिंग होगी. सिंगल रूम की प्राइस डिफरेंट होगी, डबल रूम की प्राइस डिफरेंट होगी, किंग रूम की प्राइस डिफरेंट होगी. देन इफ यू वांट प्रेसिडेंशियल सूट और यू वांट रॉयल रूम, उसकी प्राइस आपकी डिफरेंट होगी. इफ यू वांट डीलक्स रूम जिसमें मल्टीपल रूम्स होते हैं, उसके साथ आपका लिविंग रूम भी होता है, किचन भी होता है, उसकी प्राइस डिफरेंट होगी. इफ़ यू वांट अ स्टूडियो रूम, वो फुली फर्निश्ड रूम होता है, उसके साथ आपको डिफरेंट सर्विसेज भी दी जाती हैं, तो उसकी प्राइस आपकी डिफरेंट होगी. देन एयरलाइन इंडस्ट्री की आप एग्जांपल ले लें, उसमें भी डिफरेंट सीट्स हैं, इकोनॉमी क्लास की डिफरेंट है, बिजनेस क्लास की डिफरेंट है, फिर डिफरेंट प्राइसेस होंगी. फिर आप कितने फ्लाइट से कितने टाइम पहले ले रहे हैं, अगर आप काफ़ी दिन पहले ले रहे हैं तो उसकी प्राइस चेंज होगी. अगर आप ऑन द स्पॉट ले रहे हैं, फ्यू आवर्स लेफ्ट हैं फ्लाइट में, आप ले रहे हैं
टिकट ले रहे हैं तो उसकी प्राइस डिफरेंट होंगी। मीन्स डायनामिक प्राइसेस है, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। देन एडवांटेजेस ऑफ डायनामिक प्राइसिंग ऑफर्स फॉर मार्केटियर। मार्केटियर के लिए डायनामिक प्राइस के क्या एडवांटेजेस हैं? ऑब्वियसली दे कैन रीप हायर मार्जिन्स। हाई प्राइस चार्ज करके वो लोग हाई मार्जिन्स रीप कर सकते हैं। देन कस्टमर के बिहेवियर्स को वो लोग देखते हैं, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट बना के उसकी प्राइस को वो लोग हाई सेट कर देते हैं। ठीक है, और हाई मार्जिन्स ऑब्वियसली वो लोग गेन करते हैं। देन चेंजेस प्राइसेस टू एडजस्ट फॉर चेंजेस इन डिमांड। डायनामिक प्राइसिंग का एक एडवांटेज ये भी है कि जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, आप देख लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत डिमांड मिल रही है, डिमांड उसकी हाई हो गई है, तो आप उसकी प्राइसेस को हाई कर लेते हैं। लाइक ऑनलाइन जब आप म्यूजिक रिटेलर्स हैं, उसके थ्रू आप लोग सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं। ईच सॉन्ग जो है वो इनिशियली लो प्राइस होता है, बट जैसे जैसे वो लोग देख लेते हैं कि डिमांड ज़्यादा हो रही है तो वो लोग प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं। ये एडवांटेजेस हैं मार्केटियर के लिए। देन डायनेमिक प्राइसिंग के एडवांटेजेस बायर्स के लिए क्या है? ऑब्वियसली मल्टीपल प्राइसेस होती हैं मार्केट में, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं मार्केट में। हम लोग अपनी जो रिक्वायर्ड प्राइस है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उस पे भी हम लोग निगोशिएशन करते हैं, प्राइसेस को लोअर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि प्राइसेस फिक्स नहीं है, इट्स निगोशिएबल, इट्स डायनामिक प्राइसिंग। सो हम लोग प्राइसेस को अपनी पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट को देख लेते हैं, फिर उसकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। जो लोएस्ट प्राइस है हम लोग वो सिलेक्ट कर लेते हैं, वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसमें निगोशिएशन करते हैं, उसको मजीद हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक एडवांटेज है बायर्स के लिए डायनामिक प्राइसिंग का। देन pricing is an important but difficult situation. Important, how it is an important? Because in the 4 P's, in the product, price, placing, promotion, all the factors are contributing to the cost. प्राइस की प्रोडक्ट की फीचर्स क्या होनी चाहिए, इसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होना चाहिए, इसकी एडवर्टाइजिंग कंपेन कैसी होनी चाहिए, प्रमोशन कैसी होनी चाहिए, रीसेलर्स आर इन्वॉल्व, रिटेलर्स, होलसेलर्स आर इन्वॉल्व, सब कुछ हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द 3 4 P's, ऑल द 3 P's आर इन्वॉल्व इन कॉस्ट। कॉस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट सिर्फ एक प्राइस ऐसा फैक्टर है जो हमें प्रॉफिट गेन करके दे रहा है। इट्स ओनली एलिमेंट टू प्रोड्यूस रेवेन्यूज, एज ऑल द अदर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स अ कॉस्ट। ठीक है, देन इट्स द मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट इन द 4 P's, इट्स द मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट। प्रोडक्ट की फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो चेंज करना कोई इजी टास्क नहीं है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको भी चेंज करना टाइम कंज्यूमिंग है। देन आपकी प्रमोशनल कैंपेन है, आपकी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, चेंज करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है भी तो टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन एक आपका सिर्फ प्राइस ऐसा कंपोनेंट है जो कि फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी टाइम पे उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कैन बी चेंज क्विकली अनलाइक प्रोडक्ट फीचर्स एंड चैनल कमिटमेंट्स। ऑब्वियसली बाकी जो 3 P's हैं उसके अगेंस्ट ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। So it's an important factor, but how it is a difficult factor? डिफिकल्ट फैक्टर ये इस तरह है कि प्राइसिंग, हम लोग जब अपनी प्राइसिंग सेट कर रहे होते हैं और कंपटीशन आ गया है, मार्केट में कंपटीशन आ गया है, हम लोग कंपटीशन को कॉम्पीट करने के लिए हम लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस लो कर देते हैं। सो हर सिचुएशन में प्राइसेस को कम करना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप प्राइस कंपटीशन में आप अपनी प्राइसिंग को कम करने के बजाय आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की सामने, कि वो कहें कि हाँ जी ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन इट्स वर्थ ऑफ हाई प्राइस। कॉम्पेटिटर से आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करना है, उसके फीचर्स हैं या उसकी अवेलेबिलिटी है या उसकी एडवर्टिजमेंट इतनी अच्छी है कि कस्टमर्स कहें कि ये प्राइस तो इसकी हाई है लेकिन हम लोग पे करेंगे इस हाई प्राइस के लिए। ठीक है, सो हर सिचुएशन में प्राइसिंग को कम करना इज नॉट अ सोल्यूशन। देन कॉमन मिस्टेक्स एक और ये भी है कि आप, मार्केटियर जो है वो कॉस्ट ओरिएंटेड होता है। जब वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो वो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करता है और
कहता है कि इस कॉस्ट इतनी है तो हमें इसकी प्राइस इतनी रखनी चाहिए ताकि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन गेन कर सकें। कस्टमर वैल्यू ओरिएंटेड सोच नहीं होती मार्केटियर्स की कि ये प्रोडक्ट की प्राइस हमने ये रखी है तो इसके अगेंस्ट हम कस्टमर्स को वैल्यूज क्या दे रहे हैं, उसको हम लोग बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं। सो इट इज अ कॉमन मिस्टेक मेड बाय मार्केटियर्स। देन व्हाट आर द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आर टू गेन अ टारगेट रिटर्न। ऑब्वियसली जो हमने इन्वेस्टमेंट की है हम चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट हम लोग गेन कर लें, टारगेट रिटर्न हम लोग गेन कर लें। एटलीस्ट प्रॉफिट हम लोग ना गेन करें लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेस्ट की है वो हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग अचीव कर लें। देन अनदर ऑब्जेक्टिव इज दैट कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमने कर ली, अब हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। जब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियसली हम अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हाई रखेंगे। देन प्राइसिंग और कहाँ यूज होती है? हमने अपनी प्रोडक्ट की सेल्स ग्रोथ करनी है, ग्रोथ को इंक्रीज करना है, प्रोडक्ट की ग्रोथ को इंक्रीज करना है तो हम लोग अपनी प्राइसेस को कम सेट करेंगे ताकि वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में पेनिट्रेट हो जाए और हमारी सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हो जाए। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ऑफन हम लोग समटाइम्स सेल्स लगा देते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, बाय वन गेट वन फ्री। अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करते हैं ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। देन मार्केट शेयर अगर हमने कैप्चर करना है तो उसके लिए हम अपनी प्राइसेस को कम रखेंगे। देन अगर हमने कंपटीशन को मीट करना है, ये भी एक प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने कंपटीशन को मीट करने के लिए प्राइस को यूज करते हैं। अगर कंपेटिटर की प्रोडक्ट की फीचर्स और हमारे प्रोडक्ट की फीचर्स सेम है तो हम सेम कंपेटिटर के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग प्राइस को सेट करेंगे। अगर हमारी प्रोडक्ट के फीचर्स कंपेटिटर से बहुत सुपीरियर हैं तो हम लोग कंपेटिटर की प्राइस से हाई प्राइस चार्ज करेंगे। और सिमिलरली अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो है, प्रोडक्ट की फीचर्स जो हैं वो कंपेटिटर के प्राइस की फीचर से इंफीरियर हैं तो हम लोग कंपेटिटर से लो प्राइस चार्ज करेंगे। सो कंपटीशन को मीट करने के लिए भी हम लोग प्राइसिंग को यूज करते हैं। देन अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस इज दैट इट इज यूज्ड इन नॉन प्राइस कंपटीशन। अगर हम लोग compete कर रहे हैं competitor के साथ बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस बट ऑन अदर फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर हम लोग compete कर रहे हैं या प्रमोशनल मीडिया के ऊपर हम लोग compete कर रहे हैं, हम लोग अवेलेबिलिटी के ऊपर हम लोग compete कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा डाइवर्स मार्केट में हमने अपनी प्रोडक्ट को अवेलेबल किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा बहुत अच्छा है। सो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें अपना प्राइसेस को हाई रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट की अगर हम लोग फीचर्स बहुत अच्छे फीचर्स हम लोग कस्टमर्स को दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के ऊपर हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वालिटी हाई है तो उसकी प्राइस भी हाई होगी। अगर हम लोग प्रमोशनल कैंपेन बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं उसकी बेस पे हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें अपनी प्रमोशनल कैंपेन की जो कॉस्ट है वो भी हमें अपने प्राइस से निकालनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने प्राइस को हाई करना पड़ेगा। अगर हम लोगों का रीसेलर और होलसेलर्स हमने बहुत ज़्यादा हायर किए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट को अवेलेबल करने के लिए कस्टमर्स में, मार्केट्स में, तो उनकी कॉस्ट भी हमें अपनी प्राइस से निकालनी पड़ेगी, हमें अपने प्राइसेस को हाई करना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसेस कि कैसे हम लोग अपनी प्राइसिंग को लो या हाई करते हैं, उसको कैसे हम लोग अपने जो पर्टिकुलर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए कैसे हम लोग अपने प्राइसेस को यूज करते हैं। देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस? इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस फॉर इंडिविजुअल फर्म के लिए प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है? हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जैसे मैंने भी पहले बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है एटलीस्ट हम वो इन्वेस्टमेंट हम लोग गेन कर लें, या फिर हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इंडिविजुअल फर्म जो है यूज करती है प्राइसेस को, या फिर कंपटीशन को, कॉम्पिटिटर्स को compete करने के लिए यूज करती हैं प्राइसिंग को। देन डिफरेंट मैंने और भी बताया कि अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए प्राइस को यूज करती हैं, लो प्राइस कर देती हैं, मार्केट शेयर के लिए अपने मार्केट शेयर को ग्रो करने के लिए प्राइसेस को कम कर देती हैं, देन कंपटीशन को मीट करने के लिए प्राइसेस को यूज करती हैं। तो इंडिविजुअल फर्म के लिए ये इंपॉर्टेंस है कि वो अपने डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
उसको अचीव करने के लिए प्राइस को यूज करती हैं। देन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है प्राइस की? इकोनॉमी सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, in the form of fee and fare and subscriptions. So all of these contribute in the circulation of money in the economy. Okay. Then what are the factors that we have to consider when we are setting the prices of our product? So these are the factors: the internal factors, marketing objectives, marketing mix strategy, costs, and organizational considerations. Then the external factors are nature of the market and demand, our competition in the market, then other environmental factors like economy, like resellers, like government. So all these internal factors plus external factors we have to keep into consideration when we are setting the prices of our product or when we are taking decisions about our prices. Then these are the internal factors affecting the pricing decisions: the company's marketing objectives, marketing mix strategy, then the costs and organizational considerations. Now we will discuss all four of them one by one. Marketing objectives. As we have studied earlier, that we have to view that what are the objectives of the company, what are the objectives of marketing. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, ठीक है, मार्केट में हमने पोजीशनिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की ऑन द बेसिस ऑफ से क्वालिटी की बेस पे हमने अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करनी है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी जितनी हाई होगी उतना अच्छा उसमें एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल यूज होगा। सो अकॉर्डिंगली हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस हाई होगी। अगर आपने क्वालिटी की बेस पे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव है, तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस हाई होगी। ठीक है, सो दीज ऑब्जेक्टिव्स को हमने देखना होता है कि हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट करते हैं। देन अनदर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अपना मार्केट में सिर्फ सर्वाइव करना है। ठीक है, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, हमने मार्केट में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने सिर्फ सर्वाइव करना है। कंज्यूमर के वांट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है, देन आवर ऑब्जेक्टिव इज ओनली सर्वाइवल। सो फिर हम लोग अपनी प्राइस क्या रखेंगे? हम अपनी प्राइस लो रखेंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स जो मार्केटिंग के हैं वो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं। देन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमने लॉन्ग टर्म नहीं सोचना, हम कहते हैं कि बस करंट प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाए, तो ऑब्वियसली हम लोग अपने, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अवर ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारी प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट करेगा, हम लोग अपनी प्रोडक्ट की प्राइस हाई करेंगे ताकि ज्यादा मार्जिन रीप कर सकें, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। देन अवर ऑब्जेक्टिव इज मार्केट शेयर लीडरशिप, हम चाहते हैं कि हम मार्केट में शेयर हासिल कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, मींस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितनी हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतनी हमारी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगी। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट हमारी डिक्रीज होगी तो हम अपने प्राइस को कम कर देंगे, लो प्राइसेस करेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जितनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगी, उतनी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी प्राइसेस को कम कर देंगे। सो मार्केट लीडरशिप, अगर हम लोग मार्केट में चाहते हैं तो हम लोग अपनी प्राइसेस को कम कर लेंगे। सो दीज आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप लोग अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी आप लोग पोजिशनिंग करना चाह रहे हैं, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हाई प्राइसेस भी होंगी। टू प्रिवेंट कंपैरेटर टू एंटर इनटू द मार्केट,
आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करेंगे ताकि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो और कॉम्पिटिटर जो है न्यू कॉम्पिटिटर वो मार्केट में एंटर ना हो सके। देन अपने कॉम्पिटिटर की लेवल पे आप अपने प्राइसेस को सेट करते हैं टू स्टेबलाइज द मार्केट। एक्साइटमेंट मार्केट में क्रिएट करने के लिए आप टेम्परेरीली अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को रिड्यूस कर लेते हैं। सो ये सर्टेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी बेस पे आप अपनी प्राइसेस को ऊपर नीचे करते रहते हैं। टू ड्रा मोर कस्टमर्स इनटू अ रिटेल स्टोर, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर लेते हैं। देन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके क्या हैं, लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता या अपनी सेल्स को इंक्रीज करना नहीं होता। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है पार्शियल या फुल कॉस्ट रिकवरी, जितनी उनकी कॉस्ट लग चुकी है मेडिसिन पे, उनकी डॉक्टर्स की सैलरीज पे, स्टाफ की सैलरीज पे, वो चाहते हैं कि हमारी इतना हो जाए कि हम लोग जो कॉस्ट हमारी है उसको हम लोग फुलफिल कर लें, या यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स की सैलरीज हैं उनको हम लोग गेन कर लें। तो उनका जो एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपने जो पार्शियल या फुल कॉस्ट रिकवरी कर सकें, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग अपनी जो प्राइसेस हैं उसको सेट करते हैं, फीसेस को सेट करते हैं, हॉस्पिटल की फीस को सेट करते हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की फीसेस को वो लोग इसी अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। देन सेकंड हमारा जो फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर दैट वी हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन इज marketing mix strategy. What is marketing mix strategy? Your combination of product, price, placing, and promotion. This is your market mix strategy. So the decisions for the other three marketing mix elements, like your product, your pricing, your product, your placing, and your promotion. So the decisions of all the other three marketing mix elements has a great contribution in the determination of your product's price. फॉर एग्जाम्पल आपने अपने प्रोडक्ट को की क्वालिटी को बहुत हाई रखना है, यू वांट टू पोजीशन योर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाई क्वालिटी, सो ऑब्वियसली आपने अपनी फिर प्रोडक्ट की प्राइस को भी हाई रखना है। अगर आप लार्ज रीसेलर मार्जिन रखना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपने वो कॉस्ट जो है वो अपनी ऑब्वियसली अपनी प्राइस से ही लेनी है। लार्ज रीसेलर मार्जिन आपने देना है सेलर रीसेलर्स को, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज करेंगे। अगर वेरी एक्स्ट्रावेजेंट आपने प्रमोशनल कैंपेन को लॉन्च करना है तो आप फिर भी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करेंगे। डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन किन बेसिस पे करना है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करनी है प्राइस पे, मींस यू वांट टू चार्ज लीस्ट प्राइस फ्रॉम द कस्टमर्स, पोजीशन योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। कंपटीशन ज्यादा है, आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत कम रखें ताकि आपके प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो, उसके लिए आप अपनी प्राइसेस को कम कर देंगे। प्राइस को कम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लॉस में जाएँ, आप टारगेट कॉस्टिंग कर सकते हैं। व्हाट इज़ टारगेट कॉस्टिंग? प्राइसिंग दैट स्टार्ट्स विद सेटिंग एन आइडियल सेलिंग प्राइस। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की एक सेलिंग प्राइस को फाइनलाइज़ कर देते हैं कि ये सेलिंग प्राइस मैंने रखनी है। देन उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कॉस्ट्स को फाइनलाइज़ करते हैं। देन कॉस्ट को ऐसे आप लोग सेट करते हैं, कॉस्ट को ऐसे आप अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ऐसे करते हैं कि जो आपने वो प्राइस सेट की है उसी में वो सारा मीट हो जाए। टारगेट कॉस्टिंग यूज़ की प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने, उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेस लॉन्च किए। मार्केट में टूथ ब्रशेस जो थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। उन्होंने सेट किया कि हमने ये सेलिंग प्राइस से हमने $10 रखनी है। हमने ऐसा इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाना है जिसकी सेलिंग प्राइस $10 होगी। उसी के अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने अपनी कॉस्ट्स की रॉ मटेरियल परचेज किए और उन्होंने इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाया उसी $10 में। कॉस्ट भी अपने गेन किए, कॉस्ट भी उसी में फुलफिल की
और प्रॉफिट भी उन्होंने अपना उसमें गेन किया इसी प्राइस में। इसको कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग। सबसे पहले आप अपनी एक सेलिंग प्राइस को फाइनलाइज करते हैं कि ये हमारी सेलिंग प्राइस है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोडक्शन करते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको भी फुलफिल कर लेते हैं और उसी में अपना प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। टारगेट कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होता है? ऑफन यूज टू सपोर्ट प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन प्राइस। अगर आपने प्राइस की बेस पे अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग करनी है, मींस अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो रखना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप अपने टारगेट कॉस्टिंग कर सकते हैं। एंड इफ यू आर positioning your product on the basis of non-price strategies, like on the basis of high quality, high promotional channel, high distribution channel, so उसके accordingly आपके प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होती जाएंगी। Then the third internal factor which affects the decisions of our prices is called costs. What is cost? There are three different types of cost: variable cost, fixed cost, and total cost. So what is variable, fixed, and total cost? Variable cost हमारा वो cost है which is directly related with the level of production. जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल के एग्जाम्पल ले लें, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना रॉ मटेरियल ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अगर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल है वो 10 यूनिट्स का यूज होगा। अगर 20 कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल ज्यादा यूज होगा। अगर 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। वेरिएबल कॉस्ट की जितनी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं उसके साथ हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अगर तो प्रोडक्शन 0 है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, नील है, 0 है। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? प्रोडक्शन हो या ना हो, इट इज नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट आपने पे करनी ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग का रेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट की सैलरीज हो जाएंगी, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। चाहे प्रोडक्शन हो चाहे प्रोडक्शन ना हो, ये फिक्स कॉस्ट आपने देना है। प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही, इट इज नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, योर प्रॉफिट्स, इट्स फिक्स, वो आपने देनी है। देन व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। सो कॉस्ट एक अनदर फैक्टर है जो आपकी प्राइस को इफेक्ट करता है। जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी सो ऑब्वियसली उतनी प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा होगी। जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी उतनी प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी। देन डिफरेंट लेवल्स पे जो आपकी कॉस्ट होती हैं वो भी आपकी प्राइस सेटिंग को इन्फ्लुएंस कर लेती है। इसमें हमारा आ जाता है एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट्स ऑन प्राइस। एक्सपीरियंस कर्व क्या है? न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट की है, एम्प्लॉयज को मशीनरी की नो हाउ नहीं है, एम्प्लॉयज को प्रोडक्शन की इतनी नो हाउ नहीं है, एम्प्लॉयज को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी लर्निंग नहीं है। सो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होगा। इस केस में आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाती है, एम्प्लॉयज थ्रू लर्निंग, थ्रू एक्सपीरियंस, उनको एक्सपर्टीज हासिल हो जाती है उस प्रोडक्शन में। उनको पता चल जाता है कि शॉर्टकट्स क्या हैं इसके। सो वो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, सो आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। वो मशीनरी में उनको यूज करने में एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मशीनरी में वो एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, सो आपकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है। कम टाइम में आपकी ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस कर्व। जब हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन 10,000 थी तो हमारी प्राइस से $1 थी। ठीक है, प्राइस जून जून कम होती जा रही, प्रोडक्शन जून जून ज्यादा होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, तो एम्प्लॉयज जो हैं वो एक्सपीरियंस लर्न कर रहे हैं, एक्सपर्टीज हैं, शॉर्टकट्स वो लोग देख रहे हैं कि इसकी हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे हमारी
प्राइस कम होती जाएगी। 10,000 पे अगर हमारी प्राइस थी 1, फिर 20,000 पे प्राइस कम होके आ गई 0.75 पे, देन 40,000 पे वो प्राइस आ गई 0.56 पे, देन 80,000 पे वो आ गई 0.32 पे, देन 1,60,000 पे वो आ गई 0.24। सो दिस इज द एक्सपीरियंस कर्व। ठीक है, डिफरेंट जो प्रोडक्शंस हैं, थ्रू लर्निंग, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू एक्सपर्टीज, थ्रू शॉर्टकट्स, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाती है और आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जाती है। सो कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी प्राइस के डिसीजंस को इफेक्ट करता है। एंड देन योर ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, लाइक प्राइस को सेट कौन कर रहा है। इन स्मॉल कंपनीज जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफिसर हैं या आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो प्राइसेस को सेट करते हैं। इन लार्ज कंपनीज योर डिविजनल और योर प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स दे सेट द प्राइसेस। देन इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में सेलर्स की, रीसेलर्स की और जो कस्टमर्स है उनकी प्राइस नेगोशिएशन भी होती है कि क्या प्राइस हमें रखनी चाहिए इस प्रोडक्ट की। देन कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें प्राइसिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक स्टील है, ऑयल कंपनीज हैं, उनमें प्रॉपर प्राइसिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आपकी प्राइसेस को सेट करते हैं। अगर तो सीईओ या टॉप मैनेजमेंट भी प्राइस को सेट कर दे लेकिन फिर भी वो डिस्कशन करता है, अपने जो सेल्स पर्सन है उसके साथ डिस्कशन करता है और उसके बाद ही अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को अप्रूव करता है। देन सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्ट्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, अकाउंटेंट्स हैं, all these have an influence on your pricing decisions. Now the external factors which have an influence on your pricing decisions are nature of the market and demand, your competition, and the other environmental factors like economy, resellers, and government. Now we will discuss all three of them one by one. So number first is nature of the market and demand. What is the nature of the market? आपकी market की nature क्या है? आया वो pure competition है, आया monopolistic competition है, oligopolistic competition है, या फिर pure monopoly है? Pure competition क्या होता है? When there are large number of buyers and sellers in the market, buyers and sellers in the market, ज्यादा buyers and sellers हैं, प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन जो है वो इतनी नहीं है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, लाइक वीट। वीट प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं है, एक ही वीट है, वो मैं भी सेल कर रही हूँ, वो आप भी सेल कर रहे हैं, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल पार्टी सेम वीट सेल कर रही हैं। देन कॉपर हो गई, फॉरेन एक्सचेंज हो गई, करेंसी की एग्जांपल ले लें, करेंसी में भी वही करेंसी सेल कर रही हूँ, आप भी वही करेंसी सेल करें, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हर बंदा डिफरेंट सिटीज में वही करेंसी सेल कर रहे हैं। सो इस केस में आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। जो मार्केट में प्राइस चल रही है, जो प्रीवेलिंग प्राइस चल रही है, आपने वही प्राइस चार्ज करनी है। मैं भी वीट की वही प्राइस चार्ज करूंगी जो आप करेंगे, जो लाहौर में होगी, जो कराची में होगी, जो पेशावर में होगी, सेम वीट की प्राइस होगी। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के कंपटीशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं मार्केट में, सो आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, लाइक रेस्टोरेंट्स हैं, सैलून्स की एग्जांपल आप ले लें, अगर तो मोनो मेनी फर्म्स होते हैं लेकिन हर फर्म की प्रोडक्ट जो है वो दूसरे फर्म की प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है, डिफरेंशिएट किया होता है उन्होंने क्वालिटी में, फीचर्स में। सो हर कोई फर्म जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर होता है। मैं डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रही हूँ, दूसरा फर्म डिफरेंट प्राइस चार्ज करे, तीसरा फर्म डिफरेंट प्राइस चार्ज करे। क्यों? क्योंकि सेलर्स कम है। ठीक है, प्योर कंपटीशन की तरह लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं है, सेलर्स कम है और हर फर्म की प्रोडक्ट जो है वो दूसरे फर्म की प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट है। रेस्टोरेंट्स की एग्जांपल ले लें, हार्डीज में डिफरेंट प्राइसेस वो लोग चार्ज कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, चाय खाना में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक की प्रोडक्ट जो है वो दूसरे फर्म की प्रोडक्ट से डिफरेंट है। सैलून्स की एग्जांपल ले लें, डिप्लेक्स डिफरेंट चार्ज कर रहा है,
इसी तरह कर्ल्स एंड कर्ल्स डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं, सोफिया सैलून्स डिफरेंट चार्ज करें। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को उन्होंने पोजीशन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, कुछ लो प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देन इन केस ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, टू फर्म्स हो सकते हैं या फिर फ्यू फर्म्स हो सकते हैं। लाइक ऑटोमोबाइल कंपनी की एग्जांपल ले लें, कार्स की एग्जांपल ले लें, कंप्यूटर्स की एग्जांपल ले लें। एचपी का लैपटॉप है, लिनोवो का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है। सो प्राइसेस जो हैं, एक फर्म दूसरे फर्म की प्राइसेस से एक फर्म की प्राइसेस दूसरे फर्म की प्राइसेस से डिफरेंट भी हो सकती हैं अगर तो उनकी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है। लाइक कार्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है, लाइक स्टील की एग्जांपल ले लें, एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले लें, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते। देन इन केस ऑफ प्योर मोनोपोली, अगर सिंगल सेलर है मार्केट में, फॉर एग्जांपल वापडा है, तो अपनी मर्जी से प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि और कोई सेलर है ही नहीं मार्केट में। आपकी मोनोपोली है, आपकी मर्जी है, आप ज्यादा चार्ज करें, आप कम चार्ज करें। सो इट मीन्स दैट नेचर ऑफ मार्केट जो है हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन सेटिंग ऑफ योर प्राइसेस। मार्केट की नेचर क्या है? कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोलिस्टिक है, या फिर मोनोपोली है। सो अगर मोनोपोली है तो आप अपनी प्राइसेस को हाई रख सकते हैं। लेकिन अगर प्योर कंपटीशन है, सेलर्स मार्केट में बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है, तो फिर आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट की प्राइस को चार्ज नहीं कर सकते। जो मार्केट में प्राइस चल रही है, आपने वही प्राइस चार्ज करनी है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन है, आपकी प्रोडक्ट में कंपेटिटर की प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ज्यादा है, तो फिर आप अपनी मर्जी का चार्ज भी कर सकते हैं इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है? सो नेचर ऑफ द मार्केट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट व्हेन यू आर सेटिंग द प्राइसेस ऑफ योर प्रोडक्ट। देन व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर? आपके प्रोडक्ट को वो क्या वैल्यू दे रहा है, कि आया आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इतनी है कि उसके लिए वो लोग हाई प्राइस चार्ज करें या लो प्राइस चार्ज करें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से वैल्यू क्या हासिल कर रहा है और उसके अगेंस्ट प्राइस क्या पे कर रहा है। सो यू हैव टू keep into consideration that what are the benefits that you are offering to the customer and what is the price that you are charging from the customer। अगर तो कस्टमर के माइंड्स में आपके प्रोडक्ट का एक परसेप्शन, एक वैल्यू बनी हुई है, फॉर एग्जांपल आईफोन की एग्जांपल ले लें, कस्टमर के माइंड्स में एक वैल्यू बनी हुई है आईफोन की, तो उसके अगेंस्ट वो लोग हाई प्राइस भी देने को तैयार होते हैं। आपने ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में वैल्यू क्या बनी हुई है, क्या बेनिफिट्स आप लोग कस्टमर को दे रहे हैं। व्हाट इज बेनिफिट? व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज बेनिफिट माइनस कॉस्ट। क्या बेनिफिट आप दे रहे हैं और क्या कॉस्ट कस्टमर उसके लिए पे कर रहा है। अगर तो कस्टमर ने अपने माइंड में जो वैल्यू बनाई हुई है, आपकी प्राइस उसको मीट करती है, तो कस्टमर कहता है कि प्राइस और वैल्यू जो है मीट कर रहे हैं, वी शुड बाय दिस प्रोडक्ट। अगर तो प्राइस और वैल्यू मीट नहीं कर रहे, वो कहते हैं प्राइस बहुत ज्यादा है और इसके अगेंस्ट वैल्यू हमें उतनी नहीं मिल रही, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। ठीक है? और अगर प्राइस कम है और वैल्यू ज्यादा कस्टमर रिसीव कर रहा है, तो कस्टमर कहेगा प्राइस इसकी कम है, वैल्यू हमें इससे के अगेंस्ट बहुत ज्यादा मिल रही है, सो वी शुड बाय दिस प्रोडक्ट। ठीक है? कस्टमर तो वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा, लेकिन आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने प्राइस बहुत कम रखी है, वैल्यू आप लोग ज्यादा दे रहे हैं, प्राइस आप लोग बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। सो यू विल बी इन लॉस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं। जब वैल्यू और प्राइस मीट करता है, तो कस्टमर कहता है कि प्राइस और वैल्यू मीट कर रहे हैं आपस में, जो हमने अपने माइंड में उसकी वैल्यू बनाई हुई है वही प्राइस हमें पे करनी पड़ी है, सो लेट्स गो, लेट्स बाय दिस प्रोडक्ट। देन डिमांड, आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी प्राइस को बहुत इफेक्ट करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, सो ऑब्वियसली यू विल चार्ज अ हाई प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत कम है, सो यू विल चार्ज अ लेस प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट। देन प्राइस डिमांड रिलेशनशिप,
दिस इज प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। आप जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करते जाएंगे, उसकी डिमांड कम होती जाएगी। जब आपने प्राइस से 10 रखी थी, ठीक है, प्राइस आपने 10 रखी थी, तो उसकी डिमांड भी उसी के अकॉर्डिंगली थी। जैसे जैसे आपने अपनी प्राइस इंक्रीज करनी स्टार्ट कर दी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती गई। प्राइस आपकी यहां पर थी, से 10 थी, उसकी क्वांटिटी डिमांड यहां पर थी। प्राइस आपकी इंक्रीज हो गई, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होकर यहां आ गई। प्राइस आपकी मजीद इंक्रीज हो गई, सो क्वांटिटी डिमांड कम होकर यहाँ आ गई। प्राइस आपकी बहुत हाई हो गई, यहाँ तक पहुंच गई है, तो क्वांटिटी डिमांड इतनी है, ठीक है। प्राइस जून जून ज्यादा होती जाएगी, आपकी क्वांटिटी डिमांड यहाँ से यहाँ आती जाएगी। दिस इज अ डिमांड कर्व कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती जाती है, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होती जाती है, बट इट इज नॉट इन ऑल द केसेस। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई होती है, तो कस्टमर कहता है इस प्रोडक्ट की प्राइस हाई है, सो ये तो बहुत जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट होगी, हमें तो जरूर ये लेना लेना चाहिए। जैसे मैंने आईफोन की एग्जांपल दी, प्राइस उसकी बहुत हाई है, लेकिन कस्टमर की डिमांड माइंड में उसकी एक इमेज बना हुआ है क्वालिटी का, कि इसकी सुपीरियर क्वालिटी है, प्राइस इसकी जितनी भी ज्यादा हो, लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, लेकिन हमने ये क्वांटिटी डिमांड उसकी है क्योंकि सुपीरियर है, स्टेटस के साथ उसको लिंक किया हुआ है। सो ऑल द केसेस में ये डिमांड कर्व एप्लीकेबल नहीं होता। Then the other factors which affect your pricing decisions are your competitors cost. ऑब्वियसली आपके कॉम्पिटिटर की कॉस्ट क्या है, उसकी प्राइसेस क्या है, और उसके मार्केटिंग ऑफर्स क्या है, ये भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिसाइड करने से पहले अपने कॉम्पिटिटर की कॉस्ट को, प्राइसेस को और ऑफर्स को भी, क्योंकि कस्टमर जब मार्केट में जाता है प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वो उसके अगेंस्ट जो दूसरे सब्सटीट्यूट्स होते हैं उसको भी देखता है। फॉर एग्जांपल आप डीसी इन्वर्टर लेने के लिए जा रहे हैं, आप हायर की प्राइस पूछेंगे, साथ में आप ओरिएंट की भी पूछेंगे, उसके साथ आप डॉलेंस की भी पूछेंगे, फिर प्राइसेस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो आपने जब अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना है, तो आपने कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट को, उसकी प्राइसेस को, उसके मार्केट ऑफर्स को भी देखना है, क्योंकि कस्टमर जब मार्केट में जाता है, उसको जो बेस्ट प्राइस मिलती है, बेस्ट ऑफर्स मिलती है, उसने वही प्रोडक्ट को परचेज करना है। Then you can use benchmarking cost against your competitors के अगेंस्ट आप लोग एक बेंचमार्क कॉस्ट को सेट कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड आप लोग सेट कर लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी कॉस्ट्स को मैनेज करते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को सेट करते हैं। देन अदर environmental elements like economic conditions, मार्केट में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ऑब्वियसली व्हेन इन्फ्लेशन है, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी। जितनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होगी, सो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, और आपके प्रोडक्ट की प्राइस भी फ्लक्चुएट करेगी, चेंज होगी। सो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये जितने भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं। प्राइसेस सेट करते वक्त आपने ये भी देखना होता है कि जो दूसरी पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके रीसेलर्स हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा आपकी प्राइसेस के ऊपर, आपके जो कस्टमर्स हैं उसका रिएक्शन क्या होगा आपके प्राइसेस के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि कस्टमर्स जो हैं ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और इसके अगेंस्ट हमें वैल्यू क्या मिल रही है, वैल्यू और प्राइस को इक्वलाइज करते हैं। अगर तो वैल्यू और प्राइस इक्वल होते हैं, तभी वो जाके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। तो आपने प्राइस सेट करते वक्त ये भी देखना है कस्टमर का रिएक्शन क्या होगा, प्राइस एंड वैल्यू का, रीसेलर्स का रिएक्शन क्या होगा हमारी प्रोडक्ट की प्राइसेस के ऊपर। आफ्टर ऑल जो हमारी प्रोडक्ट है उसको सेल तो रीसेलर्स नहीं करना है, जब उसकी प्राइसेस रीसेलर्स को अट्रैक्टिव लगेंगी, तभी वो उस प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट को सेल करेगा।
देन कभी कभार गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है प्रोडक्ट के प्राइसेस के ऊपर कि प्रोडक्ट्स प्राइसेस शुड बी दिस मच, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की फीस में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि फीस इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अगर करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है प्रोडक्ट की प्राइसेस के ऊपर। देन अदर सोशल कंसिडरेशंस, सोसाइटी को भी आपने लेके चलना है। दूसरी जो सोशल कंसिडरेशंस हैं उसको भी आपने देखना है प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हुए। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट की प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपने देखने हैं अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को सेट करते हुए। If you have any question, you can ask me through email, through LMS queries. Thank you for your attention.